Namaskar and greetings to all. I congratulate the team of Gujarat Evening College for organizing virtual seminar, the team of organizers, and especially the IQSC and Psychology Department of the college, patron and principal Professor Smrita Jain, convener Dr. Jagdish Taparia ji, co-convener Milind Solanki. I would like to congratulate all these people who are a team after this virtual seminar. When we organize a seminar or any event, there are many things which are to be taken care of. And I know how much pain this team has taken. So I would like to congratulate all the team members and all the people whom I have mentioned from the bottom of my heart. I'd like to greet the guests of today, respected Professor Dr. Jairaj C. Jadeja, Vice Chancellor of KSKV Kutch University, Bhuj, Principal Dinesh Dadhania, Principal of Sri M.M. Godhasara Mahila College, Junagadh. This is a virtual seminar. The seminar is on Atmanirbharta, holistic perspective. I was told about the seminar by the organizing team that about 1,300 participants and 150 paper presenters are there in this seminar. They are attending, they are participating, they are a part of the seminar. These participants are from more than 25 states and 13 countries. I would like to say that it is one of the glorious example of best use of technology and the situation created by COVID-19 epidemic. Friends, when I'm talking to you on this, I would like to begin with quoting our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. What he says is, no task is impossible, no path is difficult. It is our resolution, and the resolution is strong. If our resolution is strong, no task is impossible and no path is difficult. If our resolution is strong, we have to be dedicated to make ourselves self-reliant. When he says self-reliant, here he talks about Atmanirbharta. So he says that we have to be dedicated to make ourselves self-reliant, that is Atmanirbhar. This magnificent building of self-reliant ourselves, self-reliant India will stand on 5 pillars. He talks about the 5 pillars on which this building can stand, जहां से हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं. And the pillars are economy, infrastructure, technology, demography, and demand. This is what our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has talked about when he was talking on Atmanirbharta. Friends, we can look at these pillars from different angles, whether it is economy, whether it is infrastructure, technology, demography, and demand. We'll try to look at this, how we can do it. And I'm very sure that many of the paper presenters have covered many of the aspects which Honorable Prime Minister has talked about. When I think about Atmanirbharta, I would like to relate it to the success. I would like to relate it to the success in a way. I would like to say that Kamyabi, yani success, it depends on again 5 different pillars. One of them is very important, and that is Atmanirbharta. It talks about, when we talk of success, there are pillars like Nirbhayata, Atma Santrushti, Atmanirbharta, Bhitar se Samruddhata, or Antrik Prasannata. If we focus on this, we can be successful. Friends, everywhere we talk about success and we talk about how we can achieve what we want to achieve. So these are the ways through which we can achieve it. I'd like to quote one more and then I'll come to my point. Our Honorable Finance Minister, Nirmala Sitharamanji, what she says about Atmanirbharta. She says, Atmanirbhar Bharat doesn't mean India becomes inward. India becomes inward looking. India becomes inward looking or isolates itself. It does not mean that we will go away from world. It will never happen.
India has always thought of Vasudhaiva Kutumbakam. India will focus on being self-reliant and grow local brands and businesses. When we talk of Atmanirbharta, our finance minister says we need to grow local brands and we need to think of local businesses, and we have to make our business a brand, local things a brand. Look at the Yogacharya. Look at Ramdev ji, what he has done. He has created a brand of local market. He has created a brand of Ayurveda. He has created brand of yoga. He has created brand of whatever is daily routine requirement. Look at the turnover of his company. Look at the way he has really set an example of Atmanirbharta. How we can create big things. How we can come out with such big empires. Self-reliance is the only road to freedom. If we really would like to have a freedom, we have to think of self-reliance. And being one's own person is its ultimate reward. हमको खुद बनना पड़ेगा. ये मुखौटों को निकाल फेंकना पड़ेगा. If you would like to be Atmanirbhar, we have to look at our potential. We should think of what we can do. And progress is impossible without change. Those who can't change their minds can't change anything. अगर हम किसी चीज को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम बदलने का एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तो हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते. See, look at the example. One evening college, one small department of psychology, one IQSA department, and they can gather 1,300 participants. They can call such experts. So this is another example of self-reliance. Self-reliance starts from self. आत्मनिर्भरता आत्म से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है. If we want to be आत्मनिर्भर, we have to look at ourselves. We have to look at ourselves means, I would like to say, we should identify our strength. हमें अपनी skill को पहचानना होगा. हमें अपने आप को identify करना होगा that what I can do, what potential I have. Whatever potential I have to come out with that potential. I don't think that any college have thought like this earlier before epidemic or COVID-19 has come to us, that we will go for such webinars, we will go for such virtual seminars, and we will try to connect with this much big number. It is said that when need arises, we can do that. So there are many proverbs about that necessity is the mother of invention. Like that, when it is required, we go for it. Now it is a high time that we require to be Atmanirbhar. हमें आत्मनिर्भर बनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है. See, आत्मनिर्भर means एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. हम जितनी चीजें चाहते हैं, whatever we require, whatever we need, if we produce that, we are आत्मनिर्भर. मान लो मुझे कहीं पर किसी भी चीज के लिए जाना ना पड़े. Whatever I need, all the needs, all the requirements get satisfied with whatever I have. मेरे पास जितना है उससे अगर मेरी चीजें, मेरी जरूरियतें, मेरी जो भी जरूरियात है, मेरी जो भी नीड है, वो अगर उसी में से मैं पूरी कर सकता हूं, अगर मुझे किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, तो मैं आत्मनिर्भर. सेल्फ-रिलायंट विलेजेस का सोचिए. It was a time in India, भारत में एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पर हमारी जो विलेज सिस्टम है वो सेल्फ रिलायंट थी, वो आत्मनिर्भर थी. कैसे? आप सोचने की कोशिश करिए कि बहुत सारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो अपने गांव से कभी बाहर ही नहीं गए थे. उनको अपने गांव से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं हुई थी. They never needed to go out of the village. Go to village and ask people. There may be thousands of such people who would say, yes, we never need to go out. उसी गांव में उनको जो चाहिए था वो मिलता था. Whatever services they require, the गांव or the village they used to produce for themselves. Whatever food they require, they used to grow themselves. Vegetables they require, वही खुद उगाते थे. मसाला चाहिए तो वो भी वहीं बन जाता था. कपड़े चाहिए तो वो भी वहीं सिल जाते थे.
शूज चाहिए तो वो भी वहीं बन जाते थे, कारपेंटर चाहिए तो वो भी वहां पर अवेलेबल था। सोचिए, एक गांव की अपनी यूनिफाइड सिस्टम, एक अपनी सेंट्रलाइज सिस्टम थी, जिसमें हर एक आदमी की हर एक प्रकार की जरूरतें जो है वो वहीं पर पूरी हो जाती थी। Whatever kind of thing you require, whether you require temple, it is there. You require mosque, it is there. You require teacher, it is there. He is there. So whatever you require, जो भी चीजें हैं, जो भी एक गांव की जरूरतें हैं, वो वहीं पर पूरी हो जाती थी। सोचिए, अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो कि हमारी जो भी जरूरतें हैं, whatever we require, वो अगर हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में वहीं से पूरी हो जाए, तो फिर हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। So I would like to talk about a concept which was self-reliant India. भारत में ये बहुत प्रचलित कॉन्सेप्ट है। भारत में तो ये सोचा ही नहीं जाता था कि हमें बाहर से चीजें लाने की जरूरत पड़ेगी। And you know the history. I don't want to talk more about the history. When English people came here, they came here for different kind of things. They came here in the need of things, not to sell the things exactly. Yeah, but they wanted, यहाँ का जो तेजा का मसाला था, यहाँ की जो spices थी, they were in need of it. And when they came and they started business. And to develop their business, they made us dependent on different things and different other articles which we were not producing. जो हम नहीं बनाते थे, जो हम नहीं उगाते थे, उन चीजों की हमारी आदत उन लोगों ने डाली. So this is what they have created. Okay, I don't want to go for many other things. There are many reasons how we are dependent on other people. लेकिन मैं ये बात पूरे फोर्स से कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी जरूरतों को लिमिट करें तो वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन लिमिट करना मैं फोर्स से नहीं बताना चाहूंगा. मैं ये बताना चाहूंगा कि why to limit ourselves. हमें अपनी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए. जरूरतें चाहे कितनी भी ज्यादा हो या कितनी भी बड़ी हो, उनको पूरा करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हमें खुद बनानी चाहिए, खुद बनाना सीखना चाहिए, खुद बनाने की अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए. मैं यहाँ पर मुझे एक टीचर याद आते हैं. एक बहुत बड़े टीचर थे, बहुत बड़े विद्वान थे. उनके बहुत सारे शिष्य थे. He has many disciples. He taught many students. One of his student has become king, and he wanted to give it back to his teacher. उनको अपने टीचर को कुछ देना था. So what he did one day, he invited his teacher to his home, and then he took him to the treasure of the king. वो राजा अपने खजाने के पास उनको ले गए, उनको पूरा खजाना दिखाया और बोला कि गुरुजी, आपको इस खजाने से जो चाहिए आप ले लीजिए. गुरुजी ने सारा खजाना देखा, फिर बोला मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए. उसने बोला कोई नहीं, आप मेरे गांव में चलिए, मेरे कैपिटल में चलिए. उन्होंने उनको सारे कैपिटल में घुमाया, जैसे बड़े बड़े मॉल होते हैं अभी, ऐसी जो भी दुकानें थी, जो भी चीजें थी, सब कुछ दिखाया. गुरु ने बोला कि भाई बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास इतना धन वैभव है, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं तुमसे बड़ा संतुष्ट हूं और अपने आप से भी बड़ा संतुष्ट हूं कि इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो एक स्टेट ऑफ माइंड ये हो सकता है कि हम बोले कि मुझे, हाँ, मेरे पास जो है उससे मैं संतुष्ट हूं और मुझे कुछ और नहीं चाहिए. बट इन द गिवन वर्ल्ड, इन द कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, इट इज नॉट पॉसिबल. अभी तो हमारी जरूरतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, वी कैन थिंक ऑफ दैट. सो व्हाट वी कैन डू इन दैट वे? व्हाई इंपोर्ट एंड नॉट एक्सपोर्ट मोर? अगर यही सच है कि हम अपनी जरूरतों को बढ़ा रहे हैं और अपनी जरूरतों को घटाना नहीं चाहते हैं, तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने आप चीजों को बनाना सीखना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू लर्न टू ग्रो, टू प्रोड्यूस द थिंग्स विच वी आर इंपोर्टिंग. जिन चीजों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हाई टू इंपोर्ट देम? व्हाई कांट वी एक्सपोर्ट देम? हम उन चीजों को क्यों ना आइडेंटिफाई करें कि हम उन चीजों में से किसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसको हम अपने यहां बना सकते हैं. लुक एट अवर पोटेंशियल. अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें. इट इज अ नीड दैट वी शुड आइडेंटिफाई अवर ऑन पोटेंशियल. इट इज अ नीड दैट वी शुड ट्राई टू लुक एट इनवर्ड एंड आउटवर्ड. हमारी पोटेंशियल क्या है उसको हम आइडेंटिफाई करें. आइडेंटिफाई करने के बाद अपने आप को एक्सप्लोर करें. जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं.
एक बहुत बड़ा मशीन है, मान लो, और उस मशीन के 2-3 पुर्जे इतने इंपॉर्टेंट हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इतना बड़ा मशीन, जो मशीन मान लो 1 टन का बनता है, उसकी कॉस्ट जो है, उसकी जो कॉस्ट है, उसके हिसाब से हम उसको अगर इंपोर्ट करने की कोशिश करें तो वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर उस मशीन को हम अपने ही यहां बना दें, क्यों नहीं बना सकते? थिंक ऑफ इट। मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, यहाँ मशीन और स्टील से जुड़ा हुआ। अगर एक स्टील का, हम लोहे का, मान लो एक हम हैमर बनाते हैं, बहुत बड़ा हैमर, उसकी कॉस्ट क्या होगी? यू कैन इमेजिन, मान लो 1000, 2000, 5000 रुपए। उसी स्टील में से एक नीडल बनती है। वो नीडल, विभिन्न प्रकार की नीडल्स होती है। मान लो वो नीडल टेलरिंग मशीन के लिए बनती है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 10, 20, 25 रुपए। लेकिन मान लो कि उस ऐसी नीडल को बनाई जाती है जो बड़ी ही सफाई से बनाई जाती है, और जो नीडल सर्जरी के उपयोग में आए। मान लो जो नीडल एक आदमी की लाइफ बचा सके, ऐसी नीडल बने, उस नीडल की कॉस्ट हो सकता है कि 1000 रुपए, 2000 रुपए भी बन सकती है। एक ही लोहे का टुकड़ा, उसकी आप ऐसी चीज बनाएं जो एक कंप्यूटर बना सकता है, जो एक मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, तो वो लाखों रुपए में बिक सकता है। और उसी लोहे के टुकड़े को आप एक छोटा सा, मान लो एक शील्ड बना दे, एक एक टुकड़े का एक बॉक्स बना दिया, तो वो 100 रुपए या 200 रुपए में बिक सकता है। तो बॉक्स बनाने में जितना जितना स्टील हमने यूज किया है, शायद उससे कहीं कम स्टील हो सकता है कि हम कंप्यूटर के पार्ट बनाने में यूज करते हैं, ऐसी चीजें बनाने में यूज करते हैं जो बेहद कीमती है। तो why can't we concentrate on such uses of that steel? Why can't we concentrate on such skills की जहां पर हम उन्हीं चीजों को ऐसी बनाएं कि जिसको हम, जिसकी जिसकी वैल्यू हम बहुत सारी बढ़ा पाए। थिंक ऑफ पॉपकॉर्न। थिएटर में जाते हैं, एक पॉपकॉर्न लेते हैं, 20 ग्राम से लगा के 60 ग्राम तक का पॉपकॉर्न, और बहुत बड़े थिएटर्स में उसकी कॉस्ट 500 रुपए से 600, 700 रुपए तक की होती है, एक टब ऑफ पॉपकॉर्न की। सोचिए वही पॉपकॉर्न जब मकाई की तरीके से एक गांव के खेत में उगता है, और उसका एक ही सिर्फ गन्ना, एक ही जो आप उसका लेते हैं, जो उसका डोडा जो बोलते हैं, या फिर जो भी उसका एक पार्ट होता है, मान लो एक एक मुट्ठी मकाई जो आप लेते हैं, वन फिस्ट ऑफ पॉपकॉर्न, उसकी कॉस्ट क्या होती है? वो किलो के भाव से बिकता है, क्विंटल के भाव से बिकता है, और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं गिनी जाती। और इफ यू काउंट, कई बार तो वो क्विंटल के 500 रुपए मिलते हैं, और यहां पर एक 100 ग्राम से कम के 500 रुपए मिलते हैं। सो दिस इज वेयर वी हैव टू अप्लाई अवर माइंड। यहां पर हमें अपना दिमाग लगाना है। वी हैव टू एक्सप्लोर अवर सेल्फ, वी हैव टू लुक फॉर अवर स्ट्रेंथ। वॉट एवर इज नीडेड टू बी इम्पोर्टेड शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय अवर सेल्फ। हमें जो भी चीजें लगती हैं कि ये हम इंपोर्ट करना चाहें या इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो खुद हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? यू कैन लुक एट अराउंड यू, आप अपने आसपास देख सकते हैं, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक छोटा सा देश, साउथ कोरिया, एक छोटा सा देश है, गुजरात से छोटा देश है। देखिए हमारे गुजरात के ही एक बंदे का यूज करके प्रणव मिस्त्री जो है उनके साथ काम कर रहा है, जो पालनपुर का लड़का है, और वो सैमसंग में लीड कर रहा है, और सैमसंग कंपनी आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। नोकिया को उसने उसने बीट कर दिया। पूरे वर्ल्ड का जो मोबाइल का क्षेत्र है उसमें सैमसंग जिस तरीके से काम कर रहा है, जितनी कमाई कर रहा है, आप सोच नहीं सकते। ऑन एन एवरेज यू लुक एट पीपल, आउट ऑफ 10 पीपल 3 और 4 पीपल कैरी सैमसंग मोबाइल। इतना छोटा देश, लेकिन उनकी सोच छोटी नहीं। दे थिंक इन अ डायरेक्शन, दे कैन गिव समथिंग टू द कंट्री, and they are producing mobile, they are producing electronics in such a way that they are competing with the world giants. US की एप्पल से compete कर रहा है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज से compete कर रहा है। See, think of Google, एक पर्याय बन गया है गूगल हमारी ऑनलाइन चीजों का। अब गूगल जो लोग चला रहे हैं उसमें भी ऐसे 2 लोग हैं जो जिनके नाम आप सोच सकते हैं। वन इज सुंदर पिचाई, जो गूगल को चला रहे हैं। Our people, our brain, they run the world best companies in the world. Why can't we produce such things in India? हम इंडिया में ऐसी चीजों को क्यों नहीं बना सकते? अपने लिए हम इन चीजों का आविष्कार क्यों नहीं कर सकते, उपयोग क्यों नहीं कर सकते? World is run by Indians, but why we don't look at ourselves?
इतना सोचने की कोशिश करिए कि आपको जिन चीजों की जरूरत है उनका आविष्कार करने की कोशिश करिए। अपने आप को मैं तो कहूंगा कि छोटी सी चीज से शुरुआत करिए। अगर मैं खुद सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करूंगा, मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, मेरी छोटी चीजें जो मुझे चाहिए वो मैं अपने आसपास के लोग जो बनाते हैं उनको खरीदने की कोशिश करूंगा या उनके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मेरा सराउंडिंग, मेरे आसपास के लोग आत्मनिर्भर बन जाए, मेरा फैमिली आत्मनिर्भर हो सकता है, उससे होके मेरा विलेज और सिटी आत्मनिर्भर बन सकता है, उससे मेरा देश, मेरा राज्य आत्मनिर्भर बन सकता है। यहां पर मैं गांधी जी को याद करना चाहूंगा। गांधी जी ने बात की है कि आप अपनी सारी चीजें खुद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सुबह उठ के जो हम ब्रश करते हैं वो ब्रश से लगा के, जो टूथपेस्ट लगा के ब्रश का अपने दांत साफ करते हैं, वहां से लगा के रात को हम सोते हैं, वहां तक हमें जो जो चीजें चाहिए उनका उत्पादन हम क्यों नहीं कर सकते। दुनिया के अगर बाकी लोग उसको इतने अच्छे, इतने सस्ते दामों पर इतनी अच्छी चीजें अगर बेच सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। थिंक ऑफ इट, गांधी जी ने जो आश्रम बनाया था उसमें खाने की तो चीजों में उन्होंने सेल्फ रिलायंट किया ही किया था, लेकिन सोचिए कि जो कपड़े वो पहनते थे वो भी उन्होंने बोला था कि कपास को हम खुद ही उसको हम चरखा चलाएंगे और उससे हम थ्रेड बुनेंगे और उससे हम कपड़ा बनाएंगे और वही कपड़ा पहनेंगे। We have to think of this concept. These concepts are really very big, friends, I tell you. इतनी बड़ी चीजें हमें सोचने की जरूरत नहीं, but we have to think of the things which we can really do. हम जो कर सकते हैं. Why can't we teach our students and we have to be reliant on foreign companies for that? Why can't we do the things which the world can do? पूरी दुनिया जिन चीजों को कर रही है, हम उन चीजों को क्यों नहीं कर सकते? हमारे बच्चों के सामने उनको क्यों नहीं रख सकते? देखिए, अगर वैदिक ट्रेडिशन से लगा के हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट तक देखा जाए तो भारत ने हमेशा आत्मनिर्भरता का एग्जाम्पल दिया, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन दुनिया का किया है, और आज हम उस कगार पे खड़े हैं कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कई गुना बढ़ता जा रहा है। वी शुड लुक एट इट और हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी का, हमारे हमारे आसपास के लोगों का और हम खुद का इसमें रोल है। अगर हम रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को देखें तो हम उनको इस तरीके से कर सकते हैं कि जिसमें हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम हमारी वो पद्धतियों को सोच सकते हैं। लुक एट द पीपल। आई डोंट से वी डोंट हैव स्किल्स। हमारे लोगों के पास स्किल की कहीं पर कमी नहीं है। हमारे बच्चे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्किल डेवलपमेंट का। यू लुक एट द स्टार्टअप्स, यू लुक एट द इनोवेशंस, व्हाट पीपल आर डूइंग। यहां पर बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आत्मनिर्भरता के लिए बात करूं तो आत्मनिर्भरता का मेरा मतलब, मेरा बहुत सिंपल उसका डेफिनेशन है, मेरा बहुत ही सिंपल उसका मीनिंग है, और वो है हम अपनी जो भी जरूरतें हैं, हम जो भी चीजों को चाहते हैं उनको हम खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। चलो आज नहीं बना सकते हैं, कल बनाएं। अपना जो बेस्ट माइंड है उसका पूरा उपयोग करें, और जो जितना हो सके हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कम रहे। अगर हम इन चीजों को कर पाए तो हम अपने आप को पक्का आत्मनिर्भर कर पाएंगे। जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए उसका हम निजात कर सकते हैं, हम उनसे अच्छी चीजें बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। हमें ठान लेना चाहिए, अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं। द इंपोर्टेंस इज ऑफ माई विल। देखिए, हो जाता है कई बार कि वी थिंक ओके यार ये अवेलेबल है, चाइनीज चीजें मिल रही हैं, इस कंट्री की चीजें मिल रही हैं, बड़ी सस्ती मिल रही हैं, व्हाई टू डू दैट। मैं फिर क्यों बनाऊं, क्यों इन चीजों को बनाने की कोशिश करूं। थिंक ऑफ इट, हम उनसे ज्यादा सस्ता क्यों नहीं बना सकते, हम उनसे अच्छा क्यों नहीं बना सकते। व्हाट वी डोंट हैव, गॉड ने हमें ऐसा क्या नहीं दिया है कि जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। लुक एट योर स्किल्स, यू हैव दोज गट्स। हम सब में वो गट्स है। जस्ट देयर इज अ नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर सेल्फ। हमें अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, हमें अपने आप के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम विश्वास करेंगे, अगर हम अपनी चीजें, अपनी जरूरतें जो भी है, मैं तो कहूंगा कि जरूरतें बढ़ाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो जरूरतें हैं, जो हमें चाहिए, वो हम क्यों नहीं बना सकते। मंगल तक हमारा यान गया, पहुंचा, फाइन। अब वो वहां पर लैंड नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम वहां तक पहुंचे तो सही।
See, look at many. There are thousands of such examples जहां हमने अपना कुछ करके दिखाया. Look at धीरूभाई अंबानी's Reliance company. पूरे वर्ल्ड की कंपनीज उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं. Why? He created such an image. He created such an empire. Look at रामदेव जिस बिजनेस, जो भी बाबा रामदेव जी ने बिजनेस सेटअप किया, look at it. Look at the model. Millions of crores of rupees he has set up the business. Why can't we do that? There are plenty of examples in India. इंडिया में ऐसे लाखों मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने इतिहास रचे हैं. मैं कहूंगा हम इतनी बड़ी इतिहास रचने की बातें सोच सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन छोटे से शुरुआत करते हैं. हमेशा शुरुआत अपने आप से होती है, घर से होती है, आस पड़ोस से होती है. जो भी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, those teachers who are listening to me, those students who are listening to me, I request them all, look at your potential, look at your skills, sharpen your skills and try to do something for yourself. एक चीज आप सोचें जो अपने आप के लिए आप कर सकते हैं. Why you depend on others for everything? और मुझे लगता है एक एक चीज करने से, छोटी छोटी चीज आप अपने आप के लिए करना शुरू करेंगे, उससे लगा के you will become आत्मनिर्भर. आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं. आज भारत अन्न में आत्मनिर्भर बन गया है, सिक्योरिटी में बहुत सारा आत्मनिर्भर बन गया है. हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियंस में पहुंचने वाली है. पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि हो सकता है कि स्लो डाउन पूरी दुनिया में होगा, लेकिन इंडिया में इतना उसका इफेक्ट नहीं होगा. हमारे पास जो यंग लोगों की तादाद है, द नंबर ऑफ यंग पीपल है, दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया में बहुत ज्यादा है. तो देखिए, इन सब चीजों का उपयोग करके हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं. एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू प्रूव योरसेल्फ. I would like to thank the organizers for providing me an opportunity to share my thoughts about Atmanirbharta to you. And I congratulate once again the team of organizers for organizing such an event, which is really a need of the day. जो अभी आज के दिन की एक जरूरत है, और आज के दिन ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उन सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और उन सबका, ऑर्गेनाइजर टीम का और आप सबका जो पार्टिसिपेंट है, प्रतिभागी है, प्रतिभाविक है, उन सबका भी धन्यवाद करता हूं. नमस्कार.